ایک منظر آپ کو دکھاؤں، بتاؤ کربلا کی جنگ کب شروع ہوئی؟ محرم کی 10 تاریخ کو صبح شروع ہوئی، لیکن جو رات آئی 10 محرم کے دن سے پہلے وہ عاشورہ کی رات کہلاتی ہے۔ کون سی رات کہلاتی ہے؟ اور عاشورہ کی رات کی برکت یہ ہے کہ اس رات میں ہم اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کریں گے اللہ اسے قبول فرمائے، اللہ اسے۔ تو آپ اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے نا، نماز پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ قرآن کی تلاوت کریں گے، نفل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ عاشورہ کی رات آئی، آقا امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا، اے میرے ساتھیوں، اے میرے بچوں، اے میرے رشتہ داروں، آج ہماری زندگی کی آخری رات ہے، آج ہماری زندگی کی آخری رات ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے، آپ چین سے رات گزاریں گے؟ نہیں گزاریں گے نا۔ آقا امام حسین کو معلوم تھا کل کی صبح ہماری شہادت کا رنگ لے کر آئے گی، شہادت کی خبر دیتی ہوئی آئے گی۔ آقا امام حسین نے سب کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا کہ اے میرے ساتھیوں، آج ہماری زندگی کی آخری رات ہے، آج رات جتنا ہو سکے اپنے رب کو منا لو، جتنا قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو کر لو، عبادت کے جس درجے سے گزرنا چاہتے ہو گزر جاؤ، کیونکہ کل کا صبح ہمارے لیے شہادت کا رنگ لے کر آئے گا، کل کی صبح ہمارے لیے شہادت کا دستک دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اب اہل حسین کے خیمے میں ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی درود شریف میں ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، رات گزرتی جا رہی ہے۔ جب رات سیاہی میں آ گئی، آقا امام حسین نے سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد پھر ایک خطبہ دیا۔ چراغ کو بجھانے سے پہلے کہا، اے میرے ساتھیوں، تم لوگ اپنے اپنے قریبی کا ہاتھ پکڑ لو اور اپنے اپنے گھر والوں کا ہاتھ پکڑ لو، اپنے اپنے قریبی کا ہاتھ پکڑ لو۔ اور اس کے بعد سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آقا امام حسین نے چراغ بجھا دیا اور چراغ بجھانے کے بعد کہا، اے میرے ساتھیوں، اے میرے دوستوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، میں تم سے کوئی شکایت نہیں کروں گا، رات کا اندھیرا ہے، میں نے چراغ بجھا دیا ہے، تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، اپنی جان کی خیر مناؤ۔ لیکن ہے کوئی کہ جو نکلنے والا ہے؟ سب کی آنکھوں میں آنسو ہے، ہر سب کی ہچکیاں بلند ہونے لگی۔ امام حسین نے چراغ جلایا تو دیکھا سب کے آنکھوں میں آنسو ہے، سب رو رہے ہیں، اور کہا، میرے آقا حسین نے ابھی تک تم نہیں گئے؟ کہا، حسین میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اے حسین، آپ کا خون بہنے سے پہلے میرا خون بہے گا، آپ کا ہاتھ کٹنے سے پہلے میرا ہاتھ کٹے گا، آپ کا سر کٹنے سے پہلے ہمارا سر کٹے گا، جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ باقی رہے گا آپ کے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ آج ہم اسی حسین کے نانا کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہماری نماز ظہر چھوٹ رہی ہے، احساس تک نہیں ہوتا ہے، نماز عصر چھوٹ رہی ہے، احساس تک نہیں ہوتا ہے، نماز مغرب چھوٹ رہی ہے، احساس تک نہیں ہوتا ہے، نماز عشاء چھوٹ رہی ہے، احساس تک نہیں ہو رہا ہے، ہماری بچیاں دوپٹہ اپنے سروں سے اتار کر چل رہی ہے، احساس تک نہیں ہوتا ہے، ہماری غیرت مر گئی ہے۔ ہم بھی اسی نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نبی کے کلمہ پڑھنے والے حسین کے، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ آقا امام حسین نے ان سب کے لیے دعا کی، مولا ان سب کو صبر عطا فرما اور ان سب کو اجر عطا فرما۔ صبح ہو گئی، 10ویں محرم کی صبح ہو گئی۔ اب ایک ایک کر کے جانے سارے امام حسین کربلا کے میدان میں جاتے رہے، لیکن کربلا کے میدان میں امام حسین نے خطبہ دیا۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ ایک لاش اٹھتی ہے، امام حسین کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، دوسری لاش کو اٹھاتے ہیں، پھر خطبہ دیتے ہیں، خطبہ ایک ہی خطبہ، بار بار ایک ہی خطبہ بار بار۔ تاریخوں میں 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ امام حسین نے یہی خطبہ دیا۔ اب کیا کہا؟ اے لوگوں، مجھے جانو، میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا، آپ حسین ابن علی ہیں۔ میرے آقا حسین نے فرمایا، کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ یزیدیوں نے کہا، ہاں، آپ میرے نبی کے نواسے ہیں۔ امام حسین نے کہا، کیا کبھی میں نے جھوٹ بولا؟ یزیدیوں نے کہا کہ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ کیا کہا آپ نے؟ کہا کہ کیا کبھی میں نے حرام کھانے کی ترغیب دی؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ کیا میں نے شراب پینے کی تلقین دی؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ کیا کبھی میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی؟ یزیدیوں نے کہا نہیں۔ تو اے لوگو، اے یزیدیوں، جب میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تو پھر تم میرے قتل پہ آمادہ کیوں ہو؟ تو یزیدیوں نے کہا کہ آپ حسین کی بیعت نہیں کرتے۔ تو
हुसैन ने कहा ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। अलग एक एक करके लोग शहीद होते रहे। यजीदियों ने कहा अभी तो हुसैन के मानने वाले, उनके चाहने वाले, उनके मोहब्बत करने वाले शहीद हो रहे हैं, इसलिए हुसैन बैत नहीं कर रहे। जब इनका बेटा कत्ल होगा ना, जब हुसैन बैत करेंगे। आ गई बारी हुसैन के बेटे की। एक बेटा जिसका नाम तारीख में हजरत अली अकबर है, 18 साल का करियल जवान है, 18 साल का, 18 साल का बोलो, 18 साल का करियल जवान। बिल्कुल जहन को हाजिर रखो, बस आखिरी बात हो रही है, उसके बाद हम सलाम पढ़ेंगे। इस महफिल फाका को हम ख़त्म करेंगे। 18 साल का बेटा, क्या नाम था, क्या नाम था, अली अकबर। हजरत अली अकबर शबीह मुस्तफ़ा थे। क्या थे? जब मक्का और मदीने वाले को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सताती और सरकार को देखने का दिल करता, तो मक्का वाले हजरत अली अकबर को देख लेते थे, नबी की याद ताज़ा हो जाती थी। मदीने वाले को जब नबी की तरफ होती, देखने की तमन्ना अंगड़ाई लेती, अली अकबर को देख लेते, देख कर नबी की याद ताज़ा हो जाती। अब हजरत अली अकबर अपने बाबा से इजाज़त लेते हैं। बाबा हुसैन है, अपने 18 साल के बेटे के सर पे शहादत का दूल्हा बना रहे हैं, खुद हाथों से पगड़ी बांधते हैं, बाबा अली की तलवार कमर में लटकाते हैं। ऐ मेरे कौम के बुजुर्ग मुसलमानों, तुम भी किसी बाप की बेटी होगी, तुम भी किसी बाप के बेटे होगे। क्या तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल होने के लिए तुम्हें तैयार करेगा? लेकिन हुसैन पे कुर्बान जाओ, कैसा बाप है हुसैन। हुसैन अपने 18 साल के करियल जवान बेटे को कत्ल होने के लिए तैयार कर रहा है, अपने हाथों से अमामा बांध रहा है, अपने हाथों से तैयार कर रहा है, अपने हाथों से कंघी कर रहा है, अपने हाथों से सजा रहा है। जब आका हुसैन ने तैयार कर दिया, हजरत अली अकबर को घोड़े पे सवार किया है और हजरत अली अकबर से कहा, अली अकबर जा नाना जान हौज़े कौसर पर तेरा इंतजार कर रहे हैं। हजरत अली अकबर है बाबा से जुदा होते हैं, बाबा हुसैन को सलाम करते हैं, करबला की तरफ मुड़ते हैं। जैसे ही करबला की तरफ अली अकबर जाने लगते हैं, आका इमाम हुसैन के आंखों में आंसू आ जाता है। करियर बेटा जवान जा रहा है। हजरत अली अकबर को जब करबला के मैदान में जाते हुए आका हुसैन देखते हैं, कहते बेटा अली अकबर मुड़ो, बेटा अली अकबर मुड़ो, बेटा अली अकबर मुड़ो। हजरत अली अकबर मुड़ते हैं, बेटे के आंखों में भी आंसू है, बाप के भी आंखों में आंसू है। ऐसे मंजर पे, ऐसा दर्दनाक मंजर है करबला का। ऐसे माहौल में एक बेटा अपने बाप से जुदा होकर इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए करबला के मैदान में जा रहा है। अब वो बेटा जब करबला के मैदान में पहुंचा है, यजीदियों की नजर जब करबला के मैदान में आका अली अकबर के ऊपर पड़ी है, यजीदियों ने अपने तलवार को जमीन पे रखा है और जमीन पे तलवार को रखने के बाद यजीदियों के आंखों में आंसू आया, आंखों में आंसू आया। और उमर इब्ने साद ने कहा, ऐ यजीदियों तुम्हें क्या हो गया, तुमने अपनी तलवार को जमीन पे रख दिया। और यजीदियों ने कहा, ऐ अमर शर्म करो, शर्म करो, हम सब से लड़ सकते हैं, हम अपने नबी से नहीं लड़ सकते हैं। यजीदियों ने कहा, ऐ यजीदियों सुनो, तुम्हें करबला में नबी कहाँ नजर आ रहे हैं, कहाँ नबी दिखाई दे रहे हैं? यजीदियों ने कहा, अमर देख वो नबी नजर आ रहे हैं। अमर ने कहा, ऐ यजीदियों वो नबी नहीं बल्कि आले नबी है, हुसैन का बेटा अली अकबर है, घबराओ मत, लड़ो। हजरत यजीदियों ने कहा, हम सब से लड़ सकते हैं, नबी से जंग नहीं कर सकते। अली अकबर उस साथ का नाम है। यजीदियों ने अपनी तलवारें रखी, सारे यजीदी रो रहे हैं, हम सब से जंग कर सकते हैं क्या नबी से जंग कर सकते हैं? अली अकबर शबीह मुस्तफ़ा है, सर से कमर तक जब हम अली अकबर को देखते हैं तो नबी की याद आती है, नबी का अक्स दिखाई देता है, नबी की फ़ोटो नज़र आती है, नबी का हुस्न नज़र आता है, नबी का अखलाक नज़र आता है, नबी का तेवर नज़र आता है, नबी का किरदार नज़र आता है। अबू अली अकबर है, मैदान करबला में है, यजीदियों से मुखातिब होते हैं, कोई है जो मुझसे लड़ने के लिए आए? है कोई जो मुझसे लड़ने के लिए आए? है कोई मुझसे जो तलवार चलाए मेरे साथ? किस यजीद में हिम्मत है यजीदी में कि अली अकबर के मुकाबले में आए? किसी यजीदी में हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़े और हजरत अली अकबर से तनहा मुकाबला करे। जब कोई आगे नहीं बढ़ा, अली का शेर, फातिमा का दूध और अली का खून जब जोश मारा है अली अकबर में,
अली अकबर खुद यजीदियों पे टूट पड़े और जिधर रुक किया है उन यजीदियों को गाजर और मूली की तरह कतरना शुरू किया है, काटना शुरू किया है। मयसरा की तरफ बढ़े, मयसरा को दरहम बरहम कर दिया। जब कल्ब पे आपने हमला आवर हुए हैं, कल्ब दरहम बरहम हो गया। पश्चिम की तरफ करते हैं, पश्चिम साफ हो जाता है। पूरब बढ़ते हैं, पूरब साफ हो जाता है। एक कोहराम बरपा है करबला के मैदान में, चीखो पुकार उठ रही है, लोग चीख रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं। हजरत अली अकबर लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं। जब प्यास की शिद्दत सताई है, जब प्यास की तड़प सताई है, हजरत अली अकबर ने अपने घोड़े का लगाम मोड़ा और आका इमाम हुसैन की बारगाह में आए और कहा अल अतश अल अतश, बाबा जान प्यास प्यास, भाया बाबा जान प्यास लग रही है। आका इमाम हुसैन ने कहा बेटा अली अकबर आ, अपने बाबा की जुबान को चूस ले। जब हजरत अली अकबर ने अपने बाबा हुसैन के जुबान से जब अपने जुबान को टच किया है तो क्या देखा है कि मेरे बाबा की जुबान तो मुझसे ज्यादा सूखी सूखी हुई है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा बेटा जा, अब क्या पानी की तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। हौसर कौसर पे तेरे नाना हौसर कौसर का प्याला लिए हुए तेरा इंतजार समय। दोबारा हजरत अली अकबर आ गए करबला के मैदान में। जब करबला के मैदान में हजरत अली अकबर दोबारा आए, फिर कुमसान की लड़ाई हुई, एक खून रेस लड़ाई हुई। लड़ते 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 जब हिम्मत ने जवाब दे दिया तो वो शबीह मुस्तफ़ा, वो काबे का मुहाफिज, वो मदीने का मुहाफिज, जब हिम्मत बाकी न रही, वो शबीह मुस्तफ़ा बोशागाहे हुसैन घोड़े की जैन से जमी की पुष्ट पे आता। जब जमी के पुष्प पे जब हुसैन का बेटा अली अकबर आया, एक जालिम यजीदी ने ऐसा तीर मारा था जो आका इमाम हुसैन के सीने में जाकर पेवस्त हुआ था और ऐसा गहरा जख्म था कि वो तलवार, वो तीर जब आका इमाम हुसैन जमी के पुष्प पे आए, उस वक्त भी जमी के पुष्प पे आने के बाद वो तीर आपके सीने से नहीं निकला है। आवाज दी है करबला के मैदान में, बाबा हुसैन आइए अपने 18 साल के करीब बेटे जवान अली अकबर की खबर लीजिए। बेटा आपका अनकरीब इस दुनिया को छोड़ने वाला है, आइए अपने बेटे की खबर लीजिए। बाबा दौड़ता हुआ जो सुबह से शाम तक जख्मी हो चुका है और लाशों को उठा उठा कर कब्र लोथरी हो चुकी है, हिम्मत जवाब दे चुकी है। वो 55 साल 5 महीना 5 दिन का बाप हुसैन अपने बुढ़ापे की शक्कत को जमा करता है, कुव्वत को जमा करता है और अपने 18 साल करियल जवान बेटे की जब लाशे पे आता है, अपने बेटे के सर को अपने जानों पे रखता है। बाप बेटे की निगाहें 4 होती है, बेटे की अभी जान बाकी है, नजर से नजर टकराती है। आका हुसैन से बेटा अली अकबर कहता है बाबा जान इस यजीद की बैत मत कीजिएगा, इसके हाथों में हाथ मत दीजिएगा। हजरत अली अकबर है, कौन ऐसा बेटा होगा जो अपने बाप को ऐसा मशवरा देगा? कौन बाप होगा जो अपने बेटे को ऐसे लाशे पे पहुंचेगा और उसका दिल नहीं धड़केगा? ऐ कौम के मेरी गुजूर बेटियों, ऐ मेरे बेटो जरा देखो, तुम भी एक बाप की बेटी हो, तुम भी एक बाप के बेटे हो, तुम्हारा भी कोई बाप होगा, तुम्हारी भी कोई माँ होगी। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप ने इसलिए पाला है कि तुम दीन की खिदमत कर सको? वो अली है या वो फातिमा है जिस माँ बाप ने हुसैन को इसलिए पाला था। लोग पालते इसलिए है कि जब मेरा बेटा जवान होगा मुझे याद करेगा, मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन अली फातिमा ने अपने बेटे को इसलिए पाला था कि अपने 18 साल के बेटे की कुर्बानी देकर मेरा बेटा इस्लाम को बचाता हुआ नजर आए। उस बाप के बेटे का नाम हुसैन है, उसी हुसैन के बेटे का नाम अली अकबर है। अली अकबर जानिब जन्नत रुखसत होने वाले हैं। बाप ने अपने जवान बेटे के लाश की मैयत को अपने कंधे पर अपने जानों पर रखा। बाप बेटे की आंखें 4 हुई। आका अली अकबर आका हुसैन से फरमाते अब्बू जान जो मेरे ये सीने में तीर है ना बहुत दर्द दे रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है, अब्बू जान इस तीर को निकाल दीजिए। आका इमाम हुसैन अपने 55 साल उम्र में अपनी ताकतों को इकट्ठा करने के बाद जब उस तीर को आका
अली अकबर के सीने से निकालते हैं तो तीर तनहा नहीं आता है, बल्कि उस तीर के साथ साथ अली अकबर का दिल भी उसी नेज़े में आता है। बताओ उस बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी। अगर तुम्हें थोड़ा चोट लग जाता है, तेरे बाप को गवारा नहीं होता, तेरी माँ को गवारा नहीं होता। वो बाप जब अपने बेटे के सीने से खंजर निकाला होगा, और जब उस खंजर के अंदर बाबा हुसैन के हाथों में जब अली अकबर का दिल आया होगा, तो उस बाप के पे क्या गुजरी होगी। इसीलिए तो कहा जाता है, और मेरे ख्वाजा ने कहा था, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन। ऐ हुसैन, अपने बेटे के मैयत को देखकर घबरा मत जाना। हुसैन, तुम्हें नाना ने दीन कहा है, तुम्हें दीन की पनाह कहा है, हिम्मत मत तोड़ना। हुसैन, अभी तुम्हें और शहादत देखनी है। ये तो अली अकबर है, नन्हे अली असगर का भी तुम्हें जनाजा देखना है। तुम्हारी शहादत के बाद तुम्हारी बेटी सकीना के ऊपर थप्पड़ मारा जाएगा। शाम को करबला का जंग खत्म हो गया।